Hello everyone, I am Dr. Sahil Moore. So today I will be presenting detailed solutions of NET Environmental Sciences paper held in December 2023. So let's start with the first question. This question is related to the second law of thermodynamics. There are 5 statements and we have to select the most appropriate answer for this question. Okay. So what is second law of thermodynamics? It governs the directions of spontaneous processes and the quality of energy. So first statement is related to energy flow. Energy flows from higher concentration to lower concentration. Yes, this is right. Okay. Energy always flows from hotter or higher concentrated regions to colder or lower concentrated regions. Okay. And second statement is order becomes disorder during energy transformations. Yes, this is also true. In an isolated system, spontaneous transformations always leads to an increase in total randomness or disorder. जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारा टोटल रैंडमनेस और डिसऑर्डर हमारा ऑलवेज इंक्रीजेस. ओके. Statement 3 states that the quality of energy degrades as it is transformed. Yes, this is also true. As we know, the first law of thermodynamics says that the total amount of energy always remains constant. ठीक है, हमारी जो भी total energy है वो हमेशा constant रहती है. So its capacity to perform useful work decreases with each transfer. हर ट्रांसफर के साथ जो भी एनर्जी होगी हमारी यूजफुल वर्क को करने के लिए वो डिक्रीज होती जाएगी. Okay. Next statement is degraded energy is entropy dissipated as waste products or heat. Yes, हमारी जो भी unusable low quality energy release होती है during a process typically takes the form of dispersed ambient heat, जो कि हमारी release होती है directly as a entropy. ओके तो हमारी एंट्रोपी रेज होगी यानी कि हमारी जो भी एनर्जी वेस्ट होगी किस फॉर्म में होगी हीट के फॉर्म में वेस्ट होगी. ओके. लास्ट स्टेटमेंट इज एंथैल्पी इज वेस्टेड इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस. दिस इज आल्सो ट्रू. Part of the total heat content, that is enthalpy, involved in a reaction cannot be converted into useful work and is lost to the environment. Some part of total heat content involved in a reaction हमेशा हमारी लॉस होगी. ठीक है. सो हमने देखा ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट. सो सुटेबल आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Next question is related to the lapse rate. When reduction in the ambient temperature with height r is greater than change in temperature with height induced by a dry adiabatic process represented by Rd, atmosphere is said to be. So it is saying that when environmental lapse rate R is greater than adiabatic lapse rate RD, तो क्या कंडीशन होगी हमारी? तो हमें पता है हमारी 3 कंडीशन होती है, अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल. ओके. जब भी हमारी ELR इज ग्रेटर देन ALR तो हमारी कंडीशन होगी एब्सोल्युटली अनस्टेबल. ओके. सो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता क्या है? इट इज द एक्चुअल रेट जिसपे हमारी सराउंडिंग एम्बिएंट एयर है का टेम्परेचर डिक्रीज होएगा एल्टीट्यूड के साथ. जब हमारा सराउंडिंग एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होएगा एल्टीट्यूड के साथ विद इंक्रीजिंग हाइट तो होएगा हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट. एंड व्हेन दिस रेट at which an unsaturated parcel of air cools as it rises vertically is known as dry adiabatic lapse rate, which is represented by 9.8 degrees Celsius per kilometer. Okay. Third question is numerical, which is related to absolute humidity, and in this we have to calculate the relative humidity. Absolute humidity हमें दी हुई है at 10 degrees Celsius 5 gram per meter cube. Maximum amount of water air can hold at this temperature is 10 gram per meter cube and we have to calculate the relative humidity. So relative humidity होती क्या है? It is the rate of actual water vapor present in the air to the maximum amount of water vapor the air can hold. Okay.
जो एक्चुअली में वाटर वेपर प्रेजेंट होएगा एयर के अंदर टू द जितना भी मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर होल्ड कर सकता है वो होएगा हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100. सिंपली हम इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज को पुट करेंगे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दैट इज एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट दिया है 5, maximum capacity दी है 10, and substituting this value in the formula 5 divided by 10 into 100, our value comes equal to 50%. So let's see कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. ऑप्शन नंबर 3. Okay. Next question is related to the satellites and sensors. हम मैच करना है कौन सैटेलाइट में कौन से सेंसर्स यूज होते हैं. तो हमें 4 सैटेलाइट्स दिए हैं, IRS P6, Landsat 7, Spot 4, Terra. सो एक एक के बारे में पढ़ते हैं. IRS P6 के अंदर कौन से सेंसर यूज होंगे? एविप्स. एविप्स क्या है? एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर. ओके. IRS P6 को हम बोलते हैं रिसोर्ससेट 1. इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया. इट स्पेसिफिकली कैरीज द एविप्स along with LIS-3 and LIS-4. It is used for high resolution agricultural and environmental monitoring. ओके. इसकी यूजेस भी दिए मैंने साथ साथ, आपको हेल्प रहेंगे आगे फर्दर स्टडी करने के लिए. Landsat 7 में हमारा सेंसर यूज होता है ETM, Enhanced Thematic Mapper. ओके. It collects data in visible, near infrared, short wave and thermal bands. नेक्स्ट सैटेलाइट इज Spot 4. इसमें कौन सा यूज होएगा? HRVIR, हाई रेजोल्यूशन विजिबल इंफ्रारेड. ओके. ये अगेन हमारा वर्क करेगा बहुत विजिबल एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रेंजेस में. एंड लास्ट वन इज टेरा. टेरा के अंदर हमारा यूज होता है एस्टर, एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल इमिशन रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर. ओके. एस्टर कहां का है? जापान का. सो 2, 3, 4, 1. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. ओके. सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं इसके अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ कॉल. So we have been asking the question about microscopic units of call. हमें इनमें से बताना है कौन सी यूनिट होती है हमारी कॉल की. So what are mackerels? When coal is analyzed under microscope, तो उसके ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट को हम बोलते हैं mackerels. Okay? ये बेसिकली हमारे ग्रुप होता है 3 प्राइमरी कैटेगरीज के अंदर. किसकी बेसिस पे? प्लांट ओरिजिन, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन. सो हमारे 3 होते हैं, विट्रनाइट, एक्सिनाइट एंड इनर्टिनाइट. विट्रनाइट ड्राइव्ड होते हैं हमारे फ्रॉम सेलुलर वॉल मटेरियल्स और वुडी टिश्यूज ऑफ प्लांट्स. ठीक है. सेकेंड वन इज एक्सिनाइट, जिसको हम बोलते हैं लिप्टिनाइट. इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वैक्सी एंड रेजिनस प्लांट पार्ट्स लाइक स्पोर्स, पोलन, रेजिन्स. ओके. And third and last one is inertinite. It is formed from plant matter which is heavily altered by oxidation or charred by fires during qualification. So हमारे रहेंगे A, C, E. So third will be the right answer. हाँ. Next question is related to the, हमसे पूछा है इन लॉज में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है. सो स्टेटमेंट क्या है? The wavelength of maximum radiation is inversely proportional to the absolute temperature of the emitting body. So, wavelength of maximum radiation emission from black body is inversely proportional to absolute temperature. इसको हम represent करेंगे like this. Maximum radiation emission is 1 by T. So, आज हम इस T को मैक्सिमम रेडिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट जो बी होता है वो कहलाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. ओके. तो जिसकी वैल्यू रहेगी हमारी 2.898 इंटू 10 की पावर -3. सो ये हमारा जब भी वेवलेंथ की बात करेंगे मैक्सिमम रेडिएशन की, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किस लॉ से था ये? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ऑप्शन नंबर 2. Next question is related to the liquid hazardous waste.
we have to tell surface impoundments are exhibited areas which are used to store liquid hazardous waste. Which of the process is not applied in surface impoundments? कौन सा हम नहीं कर सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, सेटलिंग कर सकते हैं, इवेपोरेशन नहीं कर सकते हैं. तो हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. और सो सरफेस इंपॉन्डमेंट हमारे बेसिकली होता है टेम्परेरी स्टोरेज, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ लिक्विड हजार्डस वेस्ट. सो न्यूट्रलाइजेशन क्या करेगा हमारा? न्यूट्रलाइजेशन हमारा पीएच को एडजस्ट करता है, ठीक है, ऑफ कोरोसिव, हाईली एसिडिक और अल्कलाइन लिक्विड वेस्ट. अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसको हम अल्कलाइन रेंज में लाएंगे, अगर बहुत ज्यादा अल्कलाइन है तो उसको तो थोड़ा कुछ एसिड डालेंगे ताकि हमारा एक न्यूट्रलाइज हो जाए हमारा. ओके, अगला है हमारा प्रेसिपिटेशन. केमिकल रिएक्शंस यूज्ड टू फोर्स डिसॉल्व हजार्डस कंपोनेंट्स लाइक हैवी मेटल्स आउट ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड्स. जैसे कि हमको अगर हैवी मेटल्स को रिमूव करना है तो हम उसको इनसॉल्युबल सॉलिड्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वहां से हम उसको रिमूव कर देंगे. तो क्या प्रोसेस होगा? प्रेसिपिटेशन. सेटलिंग हमें हमारा क्या होता है? अ फिजिकल प्रोसेस ड्रिवन बाय ग्रेविटी वेयर सस्पेंडेड सॉलिड्स सिंक टू द बॉटम. ओके, हमें पता है ग्रेविटी जो भी हमारा मटेरियल होगा सस्पेंडेड सॉलिड्स में बॉटम में आ जाएंगे, उससे हम वहां से सेपरेट कर सकते हैं. ओके, हम इवेपोरेशन नहीं करेंगे. इवेपोरेशन सरफेस एनवायरनमेंट में नहीं होता है. ओके, next question is related to the environment management. We have to tell out of the following which are project or product based tools in environmental management. तो हमें 5 स्टेटमेंट्स दी हैं: क्लीनर प्रोडक्शन, डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, टेक्नोलॉजी असेसमेंट. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी? हम पहले एनालाइज करते हैं. तो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बेस्ड टूल्स, these focus on evaluating and improving individual products or specific project interventions through their planning, design and lifespans. Okay, प्रोडक्ट्स की और प्रोजेक्ट इंटरवेंशंस की हम इंप्रूवमेंट करते हैं, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड लाइफ स्पेन्स. तो फर्स्ट वन इज डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट. इसमें हम फोकस करते हैं इकोलॉजिकल कंसिडरेशन पे directly into the product design phase to eliminate its environmental footprint. लाइफ साइकिल असेसमेंट. लाइफ साइकिल असेसमेंट हम किसी भी प्रोडक्ट की फुल लाइफ साइकिल को देखते हैं फ्रॉम इट्स क्रेडल टू ग्रेव. मीन जब उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और जब तक वो डिस्पोजल नहीं हुआ, दैट इज क्रेडल एंड ग्रेव तक हम उसकी फुल लाइफ साइकिल असेसमेंट देखते हैं. एंड रिस्क असेसमेंट में हम पोटेंशियल हजार्डस को हम आइडेंटिफाई करते हैं और एस्टिमेट करते हैं जो कि हम हार्मफुल हो सकती है हमारे हेल्थ को और इकोसिस्टम को. सो बी सी डी ऑप्शन नंबर 2, डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट हमारे प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बेस्ड टूल रहेंगे. क्लीनर प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी असेसमेंट नहीं है. ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा. अगर इन केस कोई डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. विच कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन इज कंसिडर्ड बेस्ट एज रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक? हमारा सबसे बेस्ट रहता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. क्यों रहता है? क्योंकि हमारा मीन बताता है हमें सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, जो यहां में पूछा है सेंट्रल टेंडेंसी. मोड हमें मोड और ज्योमेट्रिक मीन को अगर हम देखें इन ऑप्शंस में से, ज्योमेट्रिक मीन थर्ड क्वार्टाइल नहीं, क्वार्टाइल हमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताएगा, डिस्पर्जन नहीं बताएगा. डिस्पर्जन कौन बताएगा हमें? सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितनी वैल्यू मीन से वेरी कर रही है. ओके, अगर हमारे पास 100 वैल्यूज का डाटा सेट है तो हमें उसका अगर मीन कैलकुलेट करा तो हमें ये देखना पड़ेगा अगर हमारे मीन से जो रिमेनिंग जो हमारा टोटल डाटा सेट है कितना वेरी कर रहा है हमारे मीन से, तो हम किससे पता लगाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन से. तो इसमें हमारा थर्ड क्वार्टाइल भी नहीं होता, फर्स्ट क्वार्टाइल भी नहीं होता, रेंज भी नहीं होता, ये सब रॉन्ग है. तो सही हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3. ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी.
हमें फार्मर्स वैरायटी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। एज पर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, द फार्मर्स वैरायटी मीन्स। So this terminology is closely aligned with the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001. Farmers' variety is officially defined by specific criteria focused on traditional knowledge and indigenous crop evolution. तो इसके अंदर हम ट्रेडिशनली जो नॉलेज है उसको यूज करते हैं, ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड इन्वॉल्व्ड। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बेस्ट सूटेड है इसके लिए। क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा प्लांट वैरायटी जो हम एक्टिवली ग्रो करिए, नर्चर करिए, ऑर्गेनिकली अडेप्ट करिए ओवर जनरेशंस बाय फार्मर्स विद देयर ओन एग्रीकल्चर फील्ड। फार्मर्स ने खुद इनके ऊपर ओवर द ईयर्स, ओवर द जनरेशंस काम किया है। ओके, वाइल्ड रिलेटिव लैंड रेस, इसके अंदर लोकल लैंड रेसेस आएंगे, वाइल्ड स्ट्रेन्स होंगे फॉर डोमेस्टिकेटेड क्रॉप, provided that local farming communities hold shared traditional common knowledge regarding its specific property utility. जो वाइल्ड रिलेटिव और लैंड रेस होएगा ये भी हमारा क्लोज रिलेटेड टू द फार्मर्स वैरायटी। तो सी एंड डी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द processes. We have to tell an organism response to a toxic chemical depends on the dose administrator. में स्टेटमेंट दी है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा किसी भी केमिकल, टॉक्सिक केमिकल के ऊपर जो भी उसको डोज एडमिनिस्टर करी रही है। ठीक है, तो द इंटरप्ले ऑफ द प्रोसेस, 4 प्रोसेस इन्वॉल्व आर। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो किसी भी टॉक्सिक केमिकल की उसको डोज मिली है तो कौन से प्रोसेसेस होंगे जो रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। ओके, हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिया, हमें सिलेक्ट करना है कौन सी राइट स्टेटमेंट है। सो दिस इज रिलेटेड टू द टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंट हेल्थ। सो टॉक्सिकोकाइनेटिक डिस्क्राइब करता है हाउ एन ऑर्गेनिज्म हैंडल्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म हैंडल करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को। बेसिकली हमारे 4 फंडामेंटल सीक्वेंशियल प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट रहेगा अब्जॉर्प्शन, process by which the toxicant enters the body across biological membranes. Okay, observe कैसे हो सकते हैं? through biological membranes, lungs से हो सकता है, skin से हो सकता है, gastrointestinal tract से हो सकता है। Okay, this is absorption. Second is distribution. The movement of the absorbed toxicant via the bloodstream or lymph to various organs, tissues or storage sites within the body. Distribute होएगा absorb होने के बाद। थर्ड होएगा बायोट्रांसफॉर्मेशन। जब केमिकल अल्टरेशन होती है फॉरेन कंपाउंड की जिसको हम बोलते हैं xenobiotic by cellular enzymes, it usually convert into more water soluble form for easier elimination. Okay, so हमारी यहां तक ऑप्शंस में सी तक ठीक है। अब अगर हमसे पूछे बायोट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज्यादा ही क्लोज रिलेटेड होती है टॉक्सिकोलॉजी और मेटाबॉलिज्म हमारी नहीं रहेगी टर्म, तो हम यहां से हमारे ई को हम एलिमिनेट करेंगे। ओके, बायोट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोज रिलेटेड टू द टॉक्सिकोलॉजी टर्म। एंड एक्सक्रीशन लास्ट में एक्सक्रीट होएगा थ्रू यूरिन, फिकस और एक्सेल्ड ब्रेथ। ओके, सो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें से हमको ई एलिमिनेट करना है एंड ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द EIA, environmental impact assessment. So it is asking Leopold interaction matrix used EIA includes, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। So it includes magnitude and importance. This matrix is a qualitative EIA method developed by Lionel Leopold and his colleagues in 1971. ये यूज होता है इवेल्युएट करने के लिए environmental impacts of a proposed project. तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक ग्रिड होती है जिसके अंदर हमारी एक एक्सिस पे रहती है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के अंदर क्या हो सकता है, जो मैंने एक्सर्वेशन करी है, कंस्ट्रक्शन करी है। ओके, जो भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो एक्टिविटीज एक तरफ आ गई हमारी और उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे दूसरी तरफ आ गए, जैसे कि वाटर क्वालिटी क्या है वहां पे, क्या फ्लोरा है, क्या फौना है। तो एक स्ट्रक्चर रहता है लेपोल्ड मैट्रिक्स का। तो इसकी स्कोरिंग मैट्रिक्स क्या रहती है, बेसिकली इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स होते हैं ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10।
ओके, एक रहता है मैग्नीट्यूड, एक रहता है इंपॉर्टेंस। मैंने अभी बताया टू डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स होते हैं जो कि होते हैं मैग्नीट्यूड एंड इंपॉर्टेंस। इसको स्केल करते हैं फ्रॉम 1 to 10। मैग्नीट्यूड क्या बताएगा हमें, फिजिकल स्केल क्या है, साइज क्या है, ओके। और एक्सटीन्यूएशन ऑफ द इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि कितना हमने एरिया क्लियर किया है या फिर कितनी नॉइस जनरेट हुई है, ये सब मैग्नीट्यूड आएगा। इंपॉर्टेंस हमें एक सिग्निफिकेंस बताएगा और वेटिंग ऑफ दैट इम्पैक्ट रिलेटेड टू द लोकल इकोसिस्टम एनवायरमेंट। उस जो भी हमारे वेटिंग बताएगा, जो भी इम्पैक्ट होगा रिलेटेड टू द लोकल इकोसिस्टम ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है। Example, clearing a small patch of rare endangered habitat has a higher importance score despite a low physical magnitude. Okay. कोई भी ऐसी स्पीशीज जो बहुत इंडेंजर्ड है या रेयर है, उसकी इंपॉर्टेंस स्कोर हमेशा ज्यादा रहेगा अगर बेशक से उसका मैग्नीट्यूड लो हो। ओके, ठीक है, तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी रेयर और इंडेंजर्ड हैबिटेट। तो बेसिकली हमारे ये लिपोड मैट्रिक्स बताता है क्या मैग्नीट्यूड है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। काफी डाइवर्स क्वेश्चन है इस पूरी ही मेरे लेक्चर के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। असर्शन है, रीजन दिया है हमें, बेस्ट स्टेटमेंट बतानी है। असर्शन हमें बताता है क्लोरीन डाइऑक्साइड हैज सर्टेन एडवांटेज ओवर फ्री क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइड इन वाटर डिसइंफेक्शन। तो असर्शन हमारा क्या सही है? यस, क्लोरीन डाइऑक्साइड हमारी कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं उसकी फ्री क्लोरीन और हाइपोक्लोराइड के पर। कैसे? इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल ऑपरेशन एडवांटेज ओवर फ्री क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइड सिस्टम बिकॉज इट इज मोर इफेक्टिव एट लोअर डोसेज। ओके, और इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर और वाइड पीएच स्पेक्ट्रम के ऊपर। कम डोसेज के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है ये, जो भी हमारे माइक्रोब्स को किल करने के लिए। ओके, रीजन क्या दे रहा है? क्लोरीन डाइऑक्साइड इज एन अनस्टेबल गैस एंड डज नॉट कंबाइन विद अमोनिया और अदर नेचुरल ऑर्गेनिक्स टू प्रोड्यूस क्लोरामाइन्स और क्लोरोफॉर्म। जो कि हमारी फ्री क्लोरीन होती हैं वो हमारे जल्दी से रिएक्ट करती हैं अमोनिया के साथ और क्लोरामाइन बनाती हैं। बट क्लोरीन डाइऑक्साइड एक अनस्टेबल गैस है जो हमारे रिएक्ट करता है वाया सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म रिएक्शंस। ओके, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया, तो इसमें हमारे कोई भी डेंजर नहीं रहता है। कोई भी हमारे ट्राइहेलोमिथेन्स को बनाने के लिए जो कि हमारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है ये। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल of any ODP of any substance or chemical species is defined as a ratio of long-term impact on ozone from substance or chemical species to the impact from an equivalent amount of। जब हम ODP देखते हैं हम किसके रेफरेंस में देखते हैं? ओके, हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है ओजोन के ऊपर किसी भी केमिकल स्पीशीज का। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन में पूछ रहे हैं हमें। कंपैरिजन में होगा हमारा हमेशा CFC11। CFC11 का हमारा ODP फिक्स रहता है 1 पे। ओके, इस तरह में हमारे केमिकल स्पीशीज होते हैं रिलेटिव टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ CFC11 कैलकुलेट होते हैं। ओके, so our next question related to the Gaussian plume model। ओके, सो Gaussian plume model हमारे किस में होता है? एयर पोल्यूशन स्टडीज के अंदर। Okay, it is used for estimating pollutant concentration from point source and assumptions क्या क्या कंसिडर होता है हमें ये पूछ रहा है। ओके, 5 स्टेटमेंट दिए हैं हमें ABCD। अगेन करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है इन ऑप्शंस में से। सो इसकी बेसिकली कोर assumptions क्या रहती हैं हमारी? concentrations versus emission rate। Okay, the concentration downwind is directly proportional to the constant pollutant source strength और emission rate। जो भी हमारी कंसंट्रेशन रहेगी वो हमारे हमेशा कांस्टेंट रहेगी इमिशन रेट में। ओके, फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? C इज इक्वल्स टू में Q डिवाइडेड बाय पाई म्यू सिग्मा y बाय सिग्मा z। ओके, आप सबको ये क्वेश्चन का पता होगा। सो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्चार्ज रेट।
B is virtual point source. The physical emission from a chimney or stack rises due to momentum or buoyancy before spreading. Yes, जो भी हमारे पॉइंट सोर्स से, जो भी हमारा स्टैक से जो भी हमारी इमिशंस हो रही है, वो राइज किससे करेगी? ड्यू टू मोमेंटम एंड बुओयंसी. ओके, so this is mathematically modeled as an equivalent virtual point source located at an effective stack at h. ओके, इफेक्टिव स्टैक height h से हमारा वर्चुअल पॉइंट सोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं. स्टेटमेंट C is conservative pollutant. The pollutant is assumed to be stable and chemically inert. इसका क्या मतलब हुआ? Chemically inert का मतलब हुआ it does not go under any chemical transformation. ओके, कोई भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगा, डिके नहीं होएगा, डिपोजिशन नहीं होएगा while traveling downwind. ओके, जब भी हमारे पोल्यूटेंसी कंसंट्रेशन डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही है, कोई भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगा. D is coordinate system. It uses a 3-dimensional coordinate system, जहां पे हमारी x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन को, y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी हमारी क्रॉसवर्ड डायरेक्शन को, और z रिप्रेजेंट करेगी वर्टिकल को. आपसे कई बार डायरेक्ट इन्हीं 3 पॉइंट्स पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाउनविंड विंड डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक्स करता है, क्रॉस विंड को कौन करता है? वाई करता है, वर्टिकल कौन करता है? जेड करता है. ओके, तो हमारे ए बी सी डी राइट है. हमारे जो इनकरेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर ई. वो क्या बता रहा है? विंड यूनिफॉर्मिटी. तो हमसे पूछा है इसके अंदर, ई के अंदर, इट कंसिडर्स वेरिएबल विंड स्पीड डायरेक्शन. नो, वेरिएबल नहीं कंसिडर करते हैं हम इसके अंदर. हम इसके अंदर विंड की यूनिफॉर्मिटी कंसीडर करते हैं. ओके, दिस मॉडल assumes a constant uniform wind speed and direction. It does not account for variable wind speeds or shifting direction during the transport time. ओके, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है, because of trade-off, a good computer for nutrients cannot be a good computer for light. This is because, क्यों हो रहा है ऐसा? जो एक गुड कंप्यूटर न्यूट्रिएंट्स के लिए है, वो लाइट के लिए गुड कंप्यूटर नहीं हो सकता. साइमल्टेनियसली दोनों चीजें नहीं कर सकता. इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स रिक्वायर होते हैं. ओके, क्या मतलब है इस चीज का? एक प्लांट के पास एक लिमिटेड पूल होता है एनर्जी और बायोमास को इन्वेस्ट करने के लिए फॉर स्ट्रक्चरल ग्रोथ. ओके, being a good computer for nutrients requires allocating more biomass downward into an extensive root system to intercept and absorb soil nutrients. ओके, जो अगर न्यूट्रिएंट्स के लिए गुड कंप्यूटर होएगा, वो अपनी ज्यादा बायोमास की अलोकेशन कहां करेगा? रूट सिस्टम पे करेगा. पर जो लाइट के लिए गुड कंप्यूटर होगा, requires allocating more biomass into stems and shoots to grow taller and expand the leaf canopy over neighboring plants. Okay, because the plant cannot maximize root allocation and shoot allocation. root allocation किसने करेगा? न्यूट्रिएंट्स के अंदर. shoot allocation किसमें होएगा? लाइट के लिए. दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती हैं. so it demand contrasting mutually exclusive functional traits. okay, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1. ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द कन्वेंशन. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज नोन टू बी द फर्स्ट टू एम at 20% cut in the emission of carbon dioxide by 2005 AD. But the developed countries backed out from the agreement on the pretext of non-availability of reliable data of emission of GHG. GHGs क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज. तो इनमें जो सबसे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो थी हमारी टोरंटो कॉन्फ्रेंस समिट, कनाडा में हुई थी 1988 के अंदर. ये बेसिकली हमारी एम कर रही थी 20% कट करने के लिए CO2 को. ओके, बट इसमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने बैकआउट किया बिकॉज दे थॉट देयर आर गैप्स एंड अनसर्टेनिटी इन कंप्रेहेंसिव बेसलाइन ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन्वेंटरीज. ओके,
जो 20% ग्लोबल रिडक्शन को हमने सेट किया था बिलो 1988 लेवल्स बाय द ईयर 2005, इसको ऑफन कहा गया था टोरंटो टारगेट। ओके, सो इसको फिर ये कन्वेंशन हमारी सक्सेसफुल नहीं रही थी। ओके, बिकॉज इसमें डेवलपमेंट रीजन काफी सारों ने बैकआउट कर दिया था। सो इसके बाद फिर हमारी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस आई थी। ओके, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड लेस्टली जो लेटेस्ट रही है हमारी पेरिस एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू EIA। इसमें हमें स्कोपिंग मेथड्स दिए गए हैं, हमें इसके एडवांसमेंट में हमें इनको अरेंज करना है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्कोपिंग मेथड्स यूज्ड इन EIA इन द ऑर्डर ऑफ एडवांसमेंट। एनालॉग्स दिया है, मैट्रिसेस दिया है, चेकलिस्ट दिया है, ओवरलेस दिया है, नेटवर्क्स दिया है। सो EIA के अंदर क्या होता क्या है, देयर आर मेथड्स फॉर इम्पैक्ट स्कोपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एंड दे हैव इवॉल्व्ड क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम सिंपल ओके टू कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट और सबसे सिंपल रहेगी हमारी, मोस्ट सिंपल ऑफ दीज इज चेकलिस्ट। इट इज द मोस्ट बेसिक क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी। एक प्रोवाइड करता है एक सिंपल स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। इसमें सिर्फ एक हमको सिंपल स्ट्रक्चर लिस्ट दे देगी इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के अंदर, कोई भी इसके अंदर रिलेशनशिप नहीं होएगा एक्टिविटीज और इंपैक्ट्स के बीच में। ठीक है, किस एक्टिविटी का इंपैक्ट रहेगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। ये रिलेशन आता है हमारे से एडवांस्ड में, दैट इज मैट्रिसेस, जो हमने पढ़ा था लीपोल्ड मैट्रिक्स। ओके, इसके अंदर एक्शंस रहेंगे रोज के अंदर और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहेंगे कॉलम के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क्स। जिससे एडवांस रहेगा क्या रहेगा, नेटवर्क। इसका एग्जांपल है नेटवर्क का सोरेनसन नेटवर्क डायग्राम्स। इट मैप्स आउट सेकेंडरी, टर्शियरी एंड हायर ऑर्डर इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स बाय ट्रैकिंग पाथवेज थ्रू अ सिस्टम। ओके, लास्ट इज ओवरलेज। सबसे ज्यादा एडवांस है हमारा ओवरलेज। ओवरलेज पहले हम सिंपली ओवरलेज के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी शीट्स को यूज करते थे। ओके, बट अब एडवांस टेक्नोलॉजी आगे हम अब यूज करते हैं GIS का। GIS क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट लेयर्स मैप्स ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल सेंसिटिविटीज टू विजुअली आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ हाईली क्यूमुलेटिव इंपैक्ट। ओके, सो GIS के थ्रू हम ओवरलेज करते हैं अब। एंड लास्ट इज एनालॉग्स। एनालॉग्स सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। It is a highly sophisticated modern technique that utilizes case study data from similar projects executed under similar conditions, often combined with expert systems and predictive mathematical modeling to accurately forecast impacts. Okay, analogs के अंदर हम mathematical modeling का यूज करते हैं, सबसे एडवांस रहता है। So अब इसको हम ऑप्शंस में देखते हैं। क्या हमारी राइट रहेगी चेकलिस्ट C, उसके बाद मैट्रिसेस। ओके, CBEDA। सो ऑप्शन नंबर 2। ओके, CBEDA तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट in the section below. Okay, see you soon. Thank you.